فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ آنگن واڑی ورکرز مطالبات کی یکسوئی کے لیے چلو کلیکٹریٹ پروگرام کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کلیکٹریٹ کے محاصرے کی کوشش کی گئی۔ پولیس اور آنگن واڑی ورکرز کے درمیان ہوئے دھکے پیل اور لاٹھی چارج میں چند آنگن واڑی ورکرز زخمی ہونے پر انہیں شریک دواخانہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آنگن واڑی ورکرز مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ 10 دنوں سے احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سلسلے وار احتجاج کے تحت کلیکٹریٹ کا محاصرہ کرتے ہوئے کلیکٹریٹ آفس کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے بیٹھ گئے۔ دھرنے کی اطلاع ملنے پر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر پہنچ کر آنگن واڑی ورکرز کے احتجاج کی تائید کرتے ہوئے ان کے ساتھ دھرنے میں بیٹھ گئے۔ خواتین کو کلیکٹریٹ سے برخواست کرنے کی کوشش کے دوران پولیس اور خواتین کے درمیان دھکے پیل ہوئی اور پولیس کو مجبوراً لاٹھی چارج کرنا پڑا، جس پر چند آنگن واڑی خواتین زخمی ہو گئے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکز کی پیش کردہ خواتین تحفظات بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس بل میں مسلم خواتین اور دیگر پسماندہ طبقات کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں خواتین تحفظات بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں 50% سے زیادہ مسلم خواتین ناخواندہ ہیں اور ان کی ترقی کے لیے انہیں ایوان میں منتخب کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 7% مسلم خواتین ہیں، لیکن ایوان میں ان کی نمائندگی محض 0.7% تک محدود ہیں۔ انہوں نے مسلم لڑکیوں کے ترک تعلیم کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 19% مسلم لڑکیاں ترک تعلیم پر مجبور ہیں، جبکہ دیگر طبقات میں محض 12% لڑکیاں ترک تعلیم کر رہی ہیں۔ صدر مجلس نے خواتین تحفظات بل ناری وندنا ادھینیام پر شدید تنقید کرتے ہوئے بی جے پی کی پالیسی پر تنقید کی اور کہا کہ بی جے پی کس ناری وندنا کی بات کر رہی ہے، اسی ملک میں بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والوں کو رہا کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ایوانوں میں پہنچانے کا راستہ فراہم کر رہی ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ تحفظات کے معاملے میں حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، لیکن خواتین کو تحفظات کے بل کے ذریعے حکومت پسماندہ اور پچھڑے ہوئے طبقات کو ایوان میں نمائندگی سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں آج دوسرے مرحلے کے تحت 13,200 افراد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں آئی۔ 9 مقامات پر منعقد ہونے والی تقریبات میں ریاستی وزراء کے ATR ہریش راؤ، محمد محمود علی، سبیتا اندرا ریڈی، ملا ریڈی، ٹی سرینواس یادو، پی مہندر ریڈی، ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ، میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور غریب عوام میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے منتخب افراد میں 21 ستمبر کو ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے جائیں گے۔ غریب عوام کے ذاتی مکان کا خواب پورا کرنے کے لیے چیف منسٹر KCR نے مفت میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی ملک بھر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ چیف منسٹر KCR کی ہدایت پر GHMC کے حدود میں 10,000 کروڑ روپے کے مصارف سے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس میں 70,000 ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ماباقی مکانات کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ پہلے مرحلے میں شفاف طریقے سے آن لائن قرعہ اندازی کے ذریعے 11,700 استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا گیا اور 2 ستمبر کو 8 مقامات پر وزراء نے ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے۔ دوسرے مرحلے کے تحت تقسیم کیے جانے والے مکانات کا 15 ستمبر کو آن لائن قرعہ اندازی کے تحت انتخاب کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کی نیلوفر ہاسپٹل سے 6 دن قبل 6 ماہ کے بچے کا اغوا فیصل کا پولیس نے نظام آباد میں پتہ چلا لیا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے نظام آباد میں مغویہ بچے کا پتہ چلاتے ہوئے کمسن کو اغوا کرنے والے جوڑے کو گرفتار کر لیا۔ اس جوڑے نے پوچھ گچھ میں بتایا ہے کہ چونکہ وہ لاولد تھے، اسی لیے اس بچے کا انہوں نے اغوا کیا۔ تفصیلات کے مطابق سلمان خان اور فریدہ بیگم گنڈی پیٹ کے ایک فارم ہاؤس میں چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کو خرابی صحت کی بنا پر 14 ستمبر کی دوپہر نیلوفر ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اس کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ والدہ فریدہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے فضل خان کو پکڑے پہلی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ بڑے بیٹے کا علاج جاری تھا۔ اسی دوران فریدہ بیگم کے پاس ایک خاتون آ گئی جو اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران فریدہ بیگم کھانا لینے وارڈ سے باہر چلی گئی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو چھوٹا لڑکا اسے نظر نہیں آیا۔ فریدہ بیگم نے پریشان ہو کر قریب میں موجود افراد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو خاتون اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہی اس کے بچے کو لے کر گئی۔ فریدہ نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی تھی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر معاملہ درج
कर लिया था। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस ने जिसने इस मामले की जांच की, मगविया लड़के को निजामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है और आज अगवा करने वाले को मीडिया के सामने पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर एक नौजवान के इंतकाल की झूठी इत्तला फैला दी गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इलियास मोइनुद्दीन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मधोल जिला निर्मल में बरसरे खिदमत है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के साथ उनके इंतकाल की झूठी खबर फैला दी गई। इस तरह झूठी खबर वायरल होने के बाद उनके दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोहम्मद इलियास मोइनुद्दीन ने मीडिया से राब्ता करते हुए बताया है कि मेरा ताल्लुक निर्मल डिस्ट्रिक्ट मधोल तालुका है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास मोइनुद्दीन है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मधोल निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मुलाजिम हूँ। किसी ने सोशल मीडिया पर मेरे इंतकाल की झूठी खबर फैला दी है। अगर आपको भी फेसबुक पर किसी नामालूम नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही हैं तो थोड़ा होशियार हो जाएं। ये मुमकिन है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फंसाने और धोखा देने के लिए भेजी गई हो। एक बार जब आप इसके जाल में फंस गए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। दौसा पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया जो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करते हैं, गैंग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। जिले दौसा के थाना मंदावर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फहाश वीडियोस बनाकर लोगों से भारी रकम बटोरने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुलजिमीन के कब्जे से 3,90,400 रुपए, ATM और 7 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। ये मुलजिमीन फेसबुक के जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती वो वीडियो कॉल करते हैं। सामने वाले की फहाश वीडियोस बताना था ग्रुप। इसके बाद गैंग के लोग वीडियोस कॉल्स के जरिए दूसरे शख्स की फहाश वीडियोस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का नामुनासिब इस्तेमाल करते हैं। फिर वो इस फहाश वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। पुलिस फिलहाल मुलजिमीन से पूछगछ कर रही है ताकि गंदी वीडियोस के जरिए फ्रॉड किए दीगर वाकयात को बेनकाब किया जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असेंबली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने GHMC फंक्शन हॉल रेती गली गोलकुंडा में आरोग्य श्री मुफ्त डिजिटल हेल्थ कार्ड कैंप का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान MLA के हमरा AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर और MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। बारजा कारवान के रुकने असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा गोलकुंडा, रेशमबाग, रेती गली, खाजी गली, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी में NP3 पाइपलाइन के कामों और सीवरेज लाइनों का मुआयना किया। रुकन असेंबली ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तरक्याती सरगर्मियां NP3 पाइपलाइन और सीवरेज लाइनों को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए। इस मुआयने के दौरान रुकन असेंबली के हमरा AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज अपने कारवान में जो आरोग्य कार्ड मुफ्त का जो ऐलान करे और जो 5-6 सेंटर्स का ऐलान करे बगैर पैसे के यहाँ पर आकर अपना AFC कोड और फूड सिक्योरिटी कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर आने के बाद यहाँ आरोग्यश्री कार्ड बनता है। उसके लिए पहले कीपैड सना होटल के पास 3 दिन का प्रोग्राम था और जिसके बाद ओवैसी कमेटी हॉल में 3 दिन का प्रोग्राम था। उसके बाद गोलकुंडा GM के प्राइम के अंदर 3 दिन का प्रोग्राम है। आज 3रा दिन है यहाँ पर और मैं समझता हूँ आज से 4 दिन पहले भी गोलकुंडा सारानगर कंचे के अंदर एक स्कूल के अंदर वहाँ पर भी रखाया गया था और वहाँ पर भी मैं समझता हूँ करीब 800 से 900 लोग के कार्ड बने वहाँ पर। कुल जुमला आज यहाँ पर 3 दिन के प्रोग्राम के अंदर करीब मैं समझता हूँ 3,000 चिल्लर कार्ड बने, गोलकुंडा GM के कार्ड बने और उसी तरीके से जहाँ में प्रोग्राम हुआ उन तमाम प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूँ आखिरी प्रोग्राम बेंगलौर टेंशनपुरा ईदगाह ग्राउंड पर होगा
करीब 25,000 आरोग्यश्री कार्ड बनेंगे, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। और उसके बाद आने वाले दिनों में पेंशन पूरा के बाद फिर देखकर जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर लगाएंगे, और कई इलाके छूट के उसका भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं समझता हूँ जमाली गुंडा खुले को नगर। कनाडा में मुकीम खालिस्तानी दहशतगर्द लुखबीर सिंह सिंधु उर्फ लौंडा पर नए इनाम के बाद गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मरकजी मुलजिम गोल्डी बरार सिक्योरिटी इदारों के रेडार पर है। खबरसा एजेंसी PTI ने सरकारी जराये के हवाले से बताया है कि पंजाब पुलिस ने बरार से मुंसलिक मुजरिमों को पकड़ने के लिए कई मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 7 बजे शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम रियासत के तमाम अजला में चलाई जा रही है। जराये ने बताया है कि पुलिस की कई टीमें जिनमें सीनियर अफसरान भी शामिल हैं ऑपरेशन का हिस्सा है। पंजाब के श्री मकसर साहब का रहने वाला सुतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगर्म रुकन है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बरार इस वक्त कनाडा में है। मई के अवाइल में इंटरपोल ओटावा की मफरूर गिरफ्तारी की इमदादी टीम ने बदनाम जमाना गैंगस्टर का नाम कनाडा के टॉप 25 इंतहाई मतलूब मफरूरों की फहरिस्त में शामिल किया था। इंटरपोल के पहले नोटिस के मुताबिक बरार को कत्ल, मुजरिमाना साजिश और गैर कानूनी असलाह की स्मगलिंग के इल्जामात का भी सामना है। आलमी सियासत और सिफारतकारी के पेश नज़र में ऐसे मुतादिद लम्हे आते हैं जो उम्मीद और तरक्की की अलामत बन जाते हैं। G20 कायदीन का 2023 का एलानिया ऐसा ही एक संगमेल है जिसमें आलमी पैमाने पर सनफी मसावत बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने की तारीखी अहद बंदी को शामिल किया गया है। भारत की सदारत के तहत G20 के कायदीन ने G20 की खवातीन वजारत को तक़वियत बोहम पहुँचाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। ये हुसूल याबी आलमी पैमाने पर वाक़े सनफ़ी अदम मसावत की अशद ज़रूरत को नुमाया करती हैं और सनफ़ी मसावत के सिलसिले में इसकी अहमियत को तस्लीम करने की बाज़गश्त की हामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।